Hello students, in the last class I have discussed with you about the similarity criteria of triangles, that is AAA criteria, SSS criteria and SAS criteria. Also we have solved exercise 6.3. After it, the next theorem is the ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. कहने का मतलब है कि दो ट्रायंगल हैं ABC and PQR. If these two triangles are there and if they are similar, then the ratio of their area, it means area ABC upon area PQR is equal to AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square. मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल की एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है. बट दिस थ्योरम हैज बीन डिलीटेड फॉर दिस सेशन. Okay, because your course is reduced by 30%, so this is deleted portion. So this exercise 6.4 also deleted. So you will not solve exercise 6.4. 6.4 we will not solve, okay, because all is depend upon the area of similar triangle, what I have told. But you have to know like that area ABC upon area PQR is equal to AB upon PQ square is equal to BC upon QR square is equal to CA upon RP square. This is the theorem, but this exercise and this theorem has been deleted for this session. Okay, so next theorem we will start Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, as you know, in a right triangle, the sum of the square of any two sides of a triangle is equal to the square of its hypotenuse. मतलब कि एक राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर उसकी अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. ओके, सो लेट अस डिस्कस हाउ इट विल बी सॉल्व. बिफोर स्टार्टिंग पाइथागोरस थ्योरम you have to do or you have to solve one more theorem. This theorem is theorem 6.7. What is given? If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. Okay, now see how this theorem will be solved. Again I am repeating, if a perpendicular is drawn from the vertex of a right triangle, suppose this is a right triangle, A, this is B, this is C, right angle at B. Okay, so it is given in the theorem number 6.7. If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, मतलब एक राइट ट्रायंगल के अपोजिट वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है. ओके, let this point is D. Then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. तो कहने का मतलब है कि ये जो परपेंडिकुलर जो खींचा जा रहा है, इस परपेंडिकुलर से जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल इस होल ट्रायंगल के सिमिलर हैं. कहने का मतलब है कि ट्रायंगल ABD is similar to triangle ABC. ओके, ABD नहीं, इसको ADB कहोगे क्योंकि ये 90 डिग्री, ABC में B 90 डिग्री पहले है, तो ADB is similar to triangle ABC. Triangle CDB is similar to triangle ABC और triangle ADB is similar to triangle CDB.
बात समझ में आ गई? तो इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, मतलब एक राइट ट्रायंगल में राइट एंगल जहां उस वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज, a perpendicular is drawn to the hypotenuse, okay, then two triangles, both side of the perpendicular, two triangles are formed. These two triangles are similar to the whole triangle and they are similar to each other. अब देखिए थोड़ी देर के लिए इसे आप प्रूफ कैसे करो। गिवन तो समझ में आ ही गया होगा। ABC is a right angle triangle, right angle at B and BG is perpendicular to AC. टू प्रूफ आपको मैंने ये तीनों दिखा दिया, ये तीनों आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करोगे देखो, अब पहला करते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ABC, दिस एंगल 90 डिग्री एंड दिस एंगल ऑल्सो 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गए। ADB ये ट्रायंगल ले रहे हैं और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, होल ट्रायंगल। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC एंड दिस एंगल इज कॉमन। तो भाई ए क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गया, ओके। अगेन दिस ट्रायंगल एंड होल ट्रायंगल, एंगल C इज कॉमन, दिस एंगल 90 डिग्री एंड दिस एंगल ऑल्सो 90 डिग्री। बाई ए क्राइटेरिया दिस सेकेंड विल बी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो सिमिलर। And if these two are similar to triangle ABC, it means by these two equation triangle ADB is similar to triangle CDB. So theorem 6.7 very easy theorem and you have to solve it, okay. Now come to theorem 6.8. theorem 6.8. This 6.8 theorem is Pythagoras theorem. Now look here. In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two side. एक right triangle में जो hypotenuse का स्क्वायर होता है वो दूसरी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ओके। अब देखिए, अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ये गिवन हो जाएगा ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है पाइथागोरस थ्योरम में, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें क्या करोगे, अभी जो ये थ्योरम हम प्रूफ किए हैं इसी तरह इसमें कॉन्स्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, ध्यान दीजिए BD परपेंडिकुलर AC हो गया। अब प्रूफ करते हैं। अब देखो ये थ्योरम हमने 6.7 प्रूफ किया। 6.7 में क्या था कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द हाइपोटेन्यूज, द ट्रायंगल फॉर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द परपेंडिकुलर इज सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो कहने का मतलब है कि जब हम प्रूफ करेंगे तो ट्रायंगल ADB ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ABC के। ADB अभी हमने बताया ADB ABC के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाई थ्योरम 6.7, ओके। 6.7 मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। आप एग्जाम में लिखोगे इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्रायंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle। ये पूरा स्टेटमेंट आप लिखेंगे। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुई, ध्यान दीजिएगा, तो ADB की एक साइड हम ले लेंगे AD और एक साइड जो है बड़े वाले ट्रायंगल के ले लेंगे दैट इज AB, AD और यहाँ AB, ठीक है। और यहाँ फिर हो गया, फिर ADB की एक साइड AB है, ठीक है। AB क्या हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज है तो इसका भी हाइपोटेन्यूज लेंगे दैट इज AC, ओके। क्यों, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स क्या होते हैं, आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, ध्यान दीजिएगा यहाँ AD इंटू AC हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है। अगेन अब इधर वाले ट्रायंगल को लेते हैं, देखिए यहीं लिख दे रहे हैं ट्रायंगल BDC is similar to triangle
ABC, ये भी सिमिलर हो गया इसी थ्योरम से। ओके, अब इसकी साइड लिख लेते हैं CD अपॉन BC। देखिए ये AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को आपको लाना है एक तरफ, यहाँ AB स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ CD बाई BC, BDC की एक साइड हो गई CD, ये नीचे वाली साइड जैसे इसमें AD लिखा था मैंने, CD बाई ये बड़े वाले ट्रेंगल की साइड BC हो गई। AC को छोड़ के बाकी दोनों साइड को आपको लिखना है। और फिर BC स्क्वायर हमें करना है, क्योंकि हमने बताया AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, तो BC यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये छोटे वाले ट्रेंगल की साइड, और यही साइड जो है बड़े वाले ट्रेंगल में भी है, तो इसलिए यहाँ BC है। अब BC बाई BC क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है बाई AC, तो ये हो गया देखिए BC स्क्वायर, BC स्क्वायर और CD इंटू AC, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो, अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करो तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर लेफ्ट साइड में है प्लस BC स्क्वायर राइट साइड लेफ्ट साइड में ही है, AD इंटू AC, ध्यान दीजिए AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। अब CD इंटू AC है, AD इंटू AC है, तो देखिए AC इसमें से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद ये AD हो गया और प्लस CD हो गया। अब इस फिगर में देखिए AD और CD मिला के क्या है, AD और CD मिलके क्या है, AC है, तो ये हो जाएगा AC इंटू, यहाँ इंटू की साइन है, AC, AD प्लस CD इज इक्वल टू AC, तो ये क्या हो गया AC स्क्वायर, और ये क्या आ गया यहाँ से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूव करना था। एक कॉन्स्ट्रक्शन हमने किया, BD परपेंडिकुलर AC। उसके बाद एक बार इस छोटे ट्रायंगल को ADB को और ABC को सिमिलर दिखाया, उससे साइड्स का रेशियो दिखाया। फिर एक बार BDC और ABC को सिमिलर दिखाया, उससे साइड्स का रेशियो दिखाया, दोनों को ऐड कर दिया और ये सॉल्व हो गया, वेरी इजी। ओके, नाउ दिस इज थ्योरम 6.8, थ्योरम 6.9, सी हियर, दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। कहने का मतलब है कि जो आपने पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ किया वही जो है इसमें आपको गिवन है। ठीक है, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो B है ये 90 डिग्री का एंगल है, बट दिस थ्योरम इज ऑल्सो डिलीटेड फॉर दिस सेशन। Okay, so two theorems has been deleted. One is area of the similar triangle, the ratio of the area of similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding side, and one is converse of Pythagoras theorem. These two has been deleted. Okay, now see the examples. Example number 10. In figure 6.48, angle ACB is equal to 90 degree, ACB 90 degree, and CD perpendicular AB. Prove that BC square upon AC square is equal to BD by AD. तो ये क्या हो गया, ACD is similar to ABC. Theorem 6.7, because perpendicular is drawn, therefore this triangle is similar to the whole triangle. अब इनकी साइड्स का रेशियो लिख लेंगे, AC by AB, एक इसकी साइड है और एक AB जो है इसकी साइड है। फिर AD by AC, ये AD छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है और AC जो है बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हो गई, तो यहाँ से आ गया AC स्क्वायर और AD इंटू AB। ठीक इसी तरह इस साइड का ट्रायंगल और ये लार्जर ट्रायंगल ABC, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया गया, तो वहाँ से आ गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू BA इंटू BD। अब दोनों का रेशियो निकाल दो, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, तो BA इंटू BD अपॉन AB इंटू AD, तो AB और BA जो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, BD अपॉन AD बच गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड इट टॉप रीचेज ए विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, एक वॉल है, ठीक है,
यहाँ से एक लैडर, लैडर हमेशा इस कंडीशन में रखी जाती है। क्लास 7th में भी एक क्वेश्चन है, आपको अगर याद होगा, एट ए डिस्टेंस फुट दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2.5 मीटर। ओके, एंड इट टॉप रीचेज द विंडो एट 6 मीटर एबव द ग्राउंड। यहाँ से ये हाइट है 6 मीटर। तो दिस इज ए राइट ट्रायंगल बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस करके, ठीक है, अंडर रूट कर दोगे, तो ये जो है तीसरी साइड आ जाएगी आपकी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। तो ये मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए सी जब आप निकालोगे तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, स्क्वायर हटाने के लिए आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए यहाँ किया हुआ है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो ये सॉल्व होगा 2.5 इंटू 2.5 और 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 आपका जो है 36 हो जाएगा, और ये 2.5 का स्क्वायर 6.25, 42.25। तो ए बी जब निकालोगे तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, 42.25 अंडर रूट, तो 6.5 आ गया। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, इन फिगर 6.50 ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ये ए डी जो है बी सी के परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो फ्रॉम ट्रेंगल ए डी सी ट्रेंगल में देखिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, फ्रॉम ट्रेंगल ए डी बी, तो ए डी बी में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दिए हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, क्योंकि ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया ए बी स्क्वायर, सी डी को इधर ट्रांसफर कर दोगे, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, बी एल एंड सी एम आर मीडियन ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। प्रूव दैट 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। तो BL एंड CM आर मीडियन ऑफ ट्रेंगल ABC इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है। तो फ्रॉम ट्रेंगल ABC में क्या होगा, ABC में BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक इसी तरह ABL में देखिए, ABL में BL स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब जो BL है, ये BL स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया है आपका, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AL जो है ये AC का हाफ है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है BL एंड CM आर मीडियन, CM भी मीडियन है, मतलब M मिड पॉइंट है और L भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो जब L मिड पॉइंट होगा तो AL जो है, AL की जगह AC/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो BL स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर। अब इसको LCM 1 लेकर के ऐड कर दोगे तो नीचे 4 आ जाएगा, और ये AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर, 4 से BL स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4BL स्क्वायर हो जाएगा। अब CMA में देखिए, इन ट्रेंगल CMA ट्रेंगल में देखते हैं। अब CMA में देखिए, CMA में क्या हो जाएगा, CM स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब CM स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AM फिर हमने बताया, यहाँ देखिए M जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, तो AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB/2। तो AB/2 का स्क्वायर हो गया तो AB स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ भी LCM लेंगे तो 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4BL स्क्वायर और प्लस 4CM स्क्वायर, 4 कॉमन हो गया, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ठीक है, और ये 4AC स्क्वायर और यहाँ AC स्क्वायर, 5AC स्क्वायर, 4AB स्क्वायर और AB स्क्वायर 5AB स्क्वायर, 5 कॉमन हो गया, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर और AB स्क्वायर क्या होगा, देखिए यहाँ यही किया गया है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए,
O is any point inside a rectangle ABCD. ABCD is a rectangle, O एक point है. Prove that OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square. ठीक है, तो यहाँ पे थ्रो ओ ड्रॉ PQ पैरेलल BC. PQ एक लाइन खींचा गया BC के पैरेलल. So that P lies on AB and Q lies on DC. P lies on AB and Q lies on DC. Now PQ is parallel to BC. Therefore PQ is perpendicular to AB. क्योंकि ऑलरेडी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में जो पैरेलल होगा वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा. तो PQ परपेंडिकुलर AB एंड PQ परपेंडिकुलर टू DC. ये DC पे भी परपेंडिकुलर होगा. तो ठीक है, therefore BPQ this is 90 degree and CQP this is also 90 degree. ये भी 90 और ये भी 90. ठीक है, therefore BPQC and APQD, BPQC और APQD ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल हो जाएंगे. नाउ फ्रॉम ट्रेंगल OPB. अब OPB ट्रेंगल को आप देखिए, OPB को OB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. ठीक है, यहाँ देखिए OB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. ये नंबर 1 हो गया. ठीक है, यहाँ देखिए OB स्क्वायर OD स्क्वायर. अब इसी तरह OD को लाना है तो यहाँ ये ले लेंगे, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर. ठीक है, तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर. फिर OQC में OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर. और ट्रेंगल OAP में OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 4 ट्रेंगल राइट ट्रेंगल बन रहे हैं. एक ये, एक ये, एक ये और ठीक है और एक ये. 4 राइट ट्रेंगल बन रहे हैं. अब चारों को हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से जब 4 इक्वेशन बन गए तो सबको 1 और 2 को ऐड करेंगे. तो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर हमें लाना था तो हमने ऐड कर दिया. अब ऐड करने के बाद ये देखिए BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर. ठीक है, अब BP इज इक्वल टू CQ है, BP इज इक्वल टू CQ है, ये आपको देखना पड़ेगा पीछे. और DQ इज इक्वल टू AP है. देखिए BP, यहाँ देखिए BP इज इक्वल टू CQ और DQ इज इक्वल टू AP. ठीक है, क्योंकि यहाँ एक पैरेलल होगा, ये रेक्टेंगल हो गया दोनों, तो ये अपोजिट साइड जो है क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो अब यहाँ फिर से देखिए, तो इस DQ की जगह AP और BP की जगह CQ. अब CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर और ये OP स्क्वायर और AP स्क्वायर एक जगह हो गया. तो इक्वेशन नंबर 3 में देखें आप, इक्वेशन नंबर 3 में आया है OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर. तो OQ स्क्वायर और CQ स्क्वायर की जगह OC स्क्वायर हो गया और AP स्क्वायर और OP स्क्वायर की जगह OA स्क्वायर हो गया. AP स्क्वायर OP स्क्वायर की जगह OA स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो ये हो गया OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. ये प्रूफ हो गया. ओके, नाउ come to exercise 6.5. In 6.5, what is the first question? The first question, side of triangle are given below. Determine which of them are right triangle. In case of right triangle, write the length of its hypotenuse. अब right triangle कैसे हम शो करते हैं? right triangle में क्या होता है, the square of the two side of a triangle, the sum of the square of two side of the triangle, मतलब 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये होना चाहिए थर्ड साइड सबसे लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर. तो ये 7 स्क्वायर क्या हो गया 49, 24 स्क्वायर क्या हो गया 576, अब दोनों को ऐड कर दीजिए 625 और ये 25 का स्क्वायर भी क्या हो रहा है 625. देयरफॉर दीज आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल. इसी तरह इसको भी करना है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 कितना हो गया 45 हो गया और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64. तो ये दीज आर नॉट द साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल. ओके, इसी तरह तीसरे को सॉल्व करिए, इसी तरह चौथे को सॉल्व करिए. ठीक है, एंड यू ऑल हैव टू सॉल्व all the 17 question of this exercise. Okay, I will send the PDF. So these all questions of 6.5 is depend upon whatever the theorem you have solved. Recall that theorems: Thales theorem, converse of Thales theorem,
okay, Pythagoras theorem, criteria of the similar triangle, and so on. So you all have to solve 17 questions. I will send the PDF. If there is any problem, you can call me. Thank you. Have a nice day.